یہ ویڈیو صرف سچی محبت اور عشق کرنے والے عاشق مشوق جوڑوں کے لیے ہے جو عشق میں ناکام ہو گئے اور محبت میں پاگل ہیں۔ آج جن کو سچی محبت نہیں ملی یہ ویڈیو دل تھام کر مکمل دیکھیں۔ زلیخا کس طرح یوسف پر عاشق ہوئی تھی اور کیا الزام لگے تھے، ساری کہانی اس ویڈیو میں دیکھیں۔ یہ یوسف اور زلیخا کے عشق کی لازوال مکمل داستان ہے۔ مصر کی سب خوبصورت اور معزز عورتوں نے کہا ہاشا، یہ انسان نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے، اور انہوں نے یوسف کو دیکھ کر مارے حیرت کے اپنے انگوٹھے کاٹ لیے اور ان کے انگوٹھوں سے خون رسنے لگا۔ زلیخا نے کہا وہ ایک جیتا جاگتا آدمی ہے جو کھاتا پیتا اور سوتا ہے، وہ فرشتہ نہیں فرشتوں سے بڑا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم سب اسے سجدہ کرو، اس طرح تمہارے انگوٹھوں سے خون بہنا بند ہو جائے گا اور تمہارے زخم بھر جائیں گے۔ زلیخا بشر تھی اور بشر تو شک رشک اور حسد کا پتلا ہے، اس لیے زلیخا سوچ میں پڑ گئی کہ زنان مصر کی حیرت کی وجہ یوسف کا حسن ہے یا اسے یہاں دیکھنے کی حیرت میں خوف شامل ہے۔ زلیخا نے سوچا کہ آخر اس نے بھی تو یوسف کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے ہیں، پھر یہ عورتیں ہوش و حواس کیوں کھو بیٹھیں؟ عزیز مصر اور سارے دربار نے بھی یوسف کا حسن دیکھا تھا، پھر آخر شہر کی معزز بیگمات نے اپنے انگوٹھے کیوں کاٹ لیے؟ کیا وہ یوسف سے ڈرتی ہے؟ کیا وہ ان کے رازوں کا امین ہے؟ اور اس لمحہ زلیخا بدگمانی میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ یوسف ان عورتوں کو دیکھ کر گھبرا کیوں گیا تھا؟ وہ حیران اور پریشان سا جلدی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اگر کھڑا ہو جاتا ٹھہر جاتا تو شاید پھر وہ انگوٹھے نہ کاٹ۔ کیا یوسف ان عورتوں کو پہلے سے جانتا تھا؟ اس رمز کو جاننے کے لیے زلیخا مچل اٹھی۔ آخر انگوٹھے کاٹے جانے میں کیا مزہ ہے؟ پھر اس نے سوچا اب وہ یوسف کو لائے گی اور ان سب عورتوں کو سجدے کا حکم دے گی، دیکھیں وہ اسے سجدہ کرتی ہیں یا نہیں۔ زلیخا دوڑی دوڑی یوسف کے پیچھے پیچھے گئی اور بھاگتے ہوئے یوسف کا دامن پکڑ کر بولی ٹھہرو۔ وہ ایک لمحہ کو رکا۔ زلیخا نے کہا ذرا میرے ساتھ اندر آؤ۔ یوسف حیران پریشان گھبرایا تھا، وہ زلیخا کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ اس نے سوچا وہ ان سب عورتوں سے کیسے پیچھا چھڑائے۔ اس نے دعا کی کہ خدا مجھے ان عورتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ زلیخا کی نیت کا حال خدا ہی جانتا تھا، وہ اتنی معصومیت سے اس کا دامن پکڑے اسے اندر بلا رہی تھی، مگر یوسف زلیخا کو بھی مصر کی دوسری معزز عورتوں کی طرح سمجھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ تب زلیخا نے بھاگتے ہوئے یوسف کا دامن زور سے پکڑ لیا۔ یوسف تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا، دامن کی دھجی پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گئی۔ زلیخا اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ مصر کی معزز بیگمات اپنے انگوٹھے پکڑے درد سے تڑپ رہی تھیں۔ زلیخا نے دامن کی وہ دھجی پھاڑ پھاڑ کر سب عورتوں کو بانٹ دی اور کہا کہ لو اپنے انگوٹھوں پر پٹی باندھ لو۔ عورتوں نے انگوٹھوں پر پٹیاں باندھ لیں تو خون بہنا بند ہو گیا اور ان کے انگوٹھے چمک اٹھے، وہ پٹی روشن ہو گئی، اس لیے کہ یوسف کے دامن کی دھجی تو بس روشنی کی ایک لکیر تھی۔ زلیخا نے مسکرا کر ان عورتوں سے کہا اگر تم انگوٹھے کی جگہ ہاتھ کاٹ دیتی تو تمہارا پورا ہاتھ روشن ہو جاتا۔ پھر زلیخا نے باری باری سب عورتوں کو گلے لگایا اور وہ اپنے روشن انگوٹھوں کو دیکھتی ہوئی خوشی خوشی رخصت ہوئیں۔ جب کاہن اعظم کو بتایا گیا کہ مصر کی معزز عورتوں کے انگوٹھوں سے روشنی کی شعائیں نکلتی ہیں تو کاہن اعظم نے کہا وہ سب عصمت مآب عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ مقدس روشنی ہے۔ یہ سن کر مصر کے شریف اور بڑے آدمی اپنی اپنی عورتوں پر فخر کرنے لگے اور ان عورتوں کو دیوداسیوں سے بھی بڑا مرتبہ دیا گیا، ہر طرف ان کی عصمت اور بزرگی کی دھوم مچ گئی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ مصر کی سب عصمت مآب اور پاک دامن عورتوں کے انگوٹھے روشن ہو گئے ہیں، تم اپنا انگوٹھا دکھاؤ۔ زلیخا نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا تو اس کا انگوٹھا روشن نہیں تھا، وہ تو ایک معمولی ہاتھ تھا۔ تب عزیز مصر نے دکھ سے کہا میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، آج مصر کے سب مردوں کے سامنے میرا سر جھک گیا۔ کاہن اعظم نے جب سنا کہ زلیخا کا ہاتھ ایک معمولی عورت کا ہاتھ ہے اور اس کے انگوٹھے سے روشنی کی شعائیں نہیں نکلتی تو اس نے کہا افسوس عزیز مصر کی بیوی ایسی ہو۔ ادھر سب لوگوں نے یوسف کا پھٹا ہوا کرتا دیکھا تو زلیخا کے مجرم ہونے میں کسی کو شک نہ رہا۔ بزرگوں نے گواہی دی کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اس لیے زلیخا مجرم ہے۔ زلیخا کا دل دکھ سے بھر گیا، اس نے سوچا کہ یوسف کے دل میں کوئی چور تھا، آخر وہ بھاگا کیوں کھڑا نہ رہا، اس کے ساتھ اندر کیوں نہ آیا، نہ وہ بھاگتا نہ کرتا پھٹتا، مگر وہ کسی سے کیا کہتی، وہ مجرم بنی خاموش کھڑی رہی۔
जुलेखा का जी चाहा कि वो इन सब बुजुर्गों को ये राज बता दे कि अगर वो यूसुफ का दामन ना फाड़ती तो उन सब औरतों के अंगूठे रोशन ना होते, मगर वो खामोश रही। इसे अपनी छोटी सी नेकी का ढंडोरा पीटना अच्छा ना लगा। ये कम ज़र्फी थी और लोग नियत नहीं देखते, वो ज़ाहिर अमल देखते हैं, और उसका नाम उन्होंने इंसाफ रख लिया है। लेकिन जुलेखा को दुख इस बात का था कि यूसुफ भी इसे नहीं पहचाना और वो इसे गलत समझा। वो तो सबको उसके सामने सजदा कराना चाहती थी। जुलेखा चुप रही, वो किसी से क्या कहती, कोई इसकी बात समझने वाला ना था। जुलेखा पर तोहमत लग गई, हालांकि इसका अंगूठा सही सालम था। शायद इसका जुर्म यही था कि इसने अंगूठा नहीं काटा था और यूसुफ को देखकर भी अपने होश व हवास बरकरार रखे थे। अजीज मिस्र ने जुलेखा की रोशन आंखों में देखे बगैर नफरत से मुंह मोड़ लिया और बोला, तुमने बुरी नजर से गैर की तरफ देखा है। जुलेखा ने कहा, मुझे कोई गैर नजर ही नहीं आता। फिर इसने अजीज मिस्र और सब बुजुर्गों की आंखों में आंखें डालकर देखा और अपना सर बुलंद रखा। फिर वो सब यूसुफ को सामने लाए और उसका पीछे से फटा हुआ करता दिखाया गया। यूसुफ ने जुलेखा की तरफ देखा, जुलेखा मुस्कुराई। यूसुफ अपना सर ऊंचा उठाए चल रहा था। अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा, अब तुम क्या कहती हो? जुलेखा मुस्कुराकर बोली, बेशक ये सच्चा है, और अपना सर झुका लिया। जुलेखा दिल से यूसुफ की सदाकत पर ईमान ले आई थी और वो यूसुफ के वहां से भागने का रमज समझ गई थी। अजीज मिस्र ने कहा, तो मान गई कि तूने बुरी निगाह से गैर को देखा है? जुलेखा ने फिर वही बात दोहराई, मैंने आज तक किसी गैर को नहीं देखा, मुझे गैर नजर ही नहीं आता, मेरी आंखें तो बस अब को देखती हैं। अजीज मिस्र ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। जुलेखा ने मुस्कुराकर यूसुफ की तरफ देखा और बोली, मैं यहाँ हूँ। यूसुफ इसकी बात समझ गया और उसका सर झुक गया। इसने कहा, मुझे जेल खाने जाना मंजूर है। जुलेखा ने अपना झुका हुआ सर उठा लिया और मुस्कुराने लगी। जुलेखा अपने महल में आकर सोचने लगी कि काफिले वाले जब यूसुफ को मिस्र लेकर आए तो रास्ते में उन्होंने जगह जगह पड़ाव डाला होगा। काश वो घूम फिर कर देख सकती कि और कहां कहां कुन औरतों ने मारे हैरत के अंगूठे काटे थे। जुलेखा का जी चाहा कि वो एक इनाम मुकर्रर करे ताकि सब औरतें इसे अपने कटे हुए अंगूठे दुखाने आएं और इनाम ले लें। फिर इसने सोचा कि इनाम के लालच में तो हर एक अपना अंगूठा काट कर आ जाएंगी, और ये काम जुलेखा के मर्तबा और शान के खिलाफ था कि वो सारे जहां की औरतों के अंगूठे देखती फिरे। और फिर इसने सोचा, आखिर ये जानकर क्या करेगी, इसकी बिला से अरे जहां की औरतें अपने अंगूठे काट डालें। जीत इस वक्त यूसुफ की होती अगर जुलेखा भी अपना अंगूठा काट लेती, मगर उसका अंगूठा सलामत है, इसलिए जीत इसकी हुई। और इंसाफ के दिन तो यूसुफ भी इसे पहचान ही लेगा, और वो इंसाफ के दिन का इंतजार करने लगी। जेल खाने का मुहाफिज तन और तारीक तहखाने के हुजरा में बंद करने यूसुफ को लेकर चला, मगर जो जो तहखाने में उतरता जाता था उसकी आंखें चुंधियाई जाती थीं। इसने सोचा, सूरज आसमान पर निकलता है या वो जमीन की गहराइयों में कहीं दफन है। इसे ये नहीं मालूम था कि सूरज इसके साथ चल रहा है, इसलिए कि इसकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे। इसे जेल खाने का दारोगा बने हुए साल हा साल हो गए थे। रोशनी से लाकर तारीकी में बंद करना इसका काम था, मगर आज पहली मर्तबा इसे नया काम दिया गया था, रोशनी को कैद करने का काम। दारोगा ने तहखाने के आखिरी तंग और तारीक हुजरे का दरवाजा खोलकर यूसुफ को इसमें बंद कर दिया, और जब कुठरी में बड़ा सा आहनी ताल्लू डालकर वो मुड़ा तो घबरा कर फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे की दर्ज से रोशनी की शुआएं निकल रही थीं और वो शुआएं लोहे की ताले के आर पार नजर आ रही थीं। दारोगा हवास बाख्ता हैकर वहां से चला। वापसी में वो कदम कदम पर ठोकर पे ठोकर खाता था और गिरता था। इसे ताज्जुब था कि जिस अंधेरे हुजरे में वो पिल भर में दाखिल हुआ था, इस हुजरे से वापसी में वक्त इतना लंबा क्यों हो गया। ऐसा लग रहा था कि सारी उम्र अंधेरे गारों में धक्के खाता रहेगा और रास्ता नहीं मिलेगा, दरवाजा नहीं आएगा। इसका जी चाहा कि वो वापस जाए और यूसुफ के कदमों पर गिरकर इससे मुआफी मांग ले, मगर फिर अजीज मिस्र के खौफ से वो अंधेरे में रास्ता टटोल टटोल कर चलता रहा। जब वो कैद खाने से बाहर निकला तो रात का वक्त था। उसने सोचा, खुदा जाने एक रात गुजरी है या इस सफर में कई रातें गुजर चुकी हैं, इसलिए कि इसकी दाढ़ी के काले बाल सफेद हो गए थे। अंधेरी रात में मिस्र के बालाखानों में दिए रोशन नजर आए तो उसने लोगों से पूछा कि क्या आज कोई त्योहार है।
मिस्र की सब औरतों ने चरागा क्यों किया है? लोगों ने इसे बताया कि आज रात मिस्र में इतनी तारीकी हो गई थी जैसे कनान का चांद छप गया। अजीज मिस्र ने अंधेरे से घबराकर चरागा का हुक्म दिया। फिर भी तारीकी दूर न हुई तो मिस्र की वो सब पाक दामन औरतें अपने अपने बालाखानों पर हाथ उठाकर खड़ी हो गईं, जिनके अंगूठे रोशन थे, और ये जो चरागों की लुएं नजर आ रही हैं, ये मिस्र की बुजुर्ग और नेक औरतों के अंगूठे चमक रहे हैं। जुलेखा ने इस रात अजीब ख्वाब देखा, मगर इसने अपने ख्वाब का किसी से जिक्र नहीं किया और सोचा आज की रात मुकद्दर को नींद आ रही है, मगर वो जरूर जागेगा। तारीकी में सारा मिस्र सो रहा था। रोशन अंगूठों वाली औरतें भी अपनी ख्वाबगाहों में वापस चली गई थीं और गहरी नींद में थीं। तकदीर का फरिश्ता भी सो गया था। वो बहुत थका हुआ था। कलम और कागज सोते में भी उसके पास थे। वो नींद की गफलत में कुछ लिख रहा था। जुलेखा ने चुपके से तकदीर के फरिश्ता के हाथ से कलम ले लिया और कहा, अपनी कहानी में खुद लिखूंगी। सारा मिस्र सो रहा था। जुलेखा जाग रही थी। जुलेखा ने वो ख्वाब भी सोते हुए नहीं, जागते हुए देखा था और वो अजीब उलझन में थी कि ये आलम बेदारी है या आलम ख्वाब। और आप से आप इसका सर उन देखे खुदा के सामने झक गया। उसने झक कर सजदे में उन देखे खुदा से इकरार किया, ना मैं हूं ना यूसुफ है, बस तो है, और यूसुफ तो तेरे उजाले की किरण लाया था। जो कुछ मैंने अजीज मिस्र के सामने कहा था वो तेरा ही हुक्म था। तो रोज क़यामत गवाह रहना। फिर जुलेखा ने सजदे से सर उठा लिया और सोचा, अब मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना यूसुफ से और अजीज मिस्र से। और फिर जुलेखा के दिल पर से बोझ हट गया। इसकी रूह सरवर के कैफ में डूब गई। उसे गहरी नींद आ गई। जब जुलेखा की आंख खिली तो उसके सियाह बाल सफेद हो चुके थे और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। इसके गुलाबी होंठों की पंखुड़ियां मुरझा गई थीं। इसका खूबसूरत जिस्म कमान की तरह खम हो चला था। मिस्र की वो सब औरतें जो जुलेखा की हमसुन थीं, अपने रोशन अंगूठों को देख देख कर खुशी से मगन थीं कि गम और बुढ़ापा उनके करीब से भी ना गुजरा था। उनके बाल काले थे और होंठों की कलियां तरोताजा, इसलिए कि उन्हें सच्ची मसरत और इज्जत हासिल थी। वो मिस्र की सबसे मुअज़्ज़ज़ औरतें थीं, मगर उन सब के मर्द अजीज मिस्र की तरह बूढ़े हो गए थे। एक दिन इन औरतों ने जुलेखा पर तरस खाकर कहा, अगर तुमने अपना अंगूठा काट लिया होता तो तुम भी आज जवान होती और ना यूसुफ कैद होता। हम सब की लौंडियां और गुलाम आजाद हैं, मगर तुमने एक अनहोनी बात की है और उसकी सजा भगत रही हो। जुलेखा बोली, अगर मैं अपना अंगूठा काट लेती तो दामन कौन फाड़ता, और फिर शायद तुम्हारे जख्म कभी मुंदमिल ना होते। ये सुनकर उन्होंने सर झुका लिया और खामोश हो गईं। जुलेखा उनकी बातों पर मुस्कुराने लगी। वो इन औरतों को क्या बताती कि उन्होंने तो सिर्फ अंगूठे काटे थे, मगर जब जुलेखा ने अजीज मिस्र से ये कहा था कि मैंने आज तक किसी गैर को नहीं देखा, तो इस लम्हा इसने अपना सर काट कर हथेली पर रख लिया था। और जब उसने यूसुफ से कहा था कि मैं यहाँ हूँ, तो इसके जिस्म पर गुरूर का सर नहीं था। इसकी अना खत्म हो चुकी थी, वो कहीं भी नहीं थी। वो एक लम्हा में वो सारा सफर तय कर चुकी थी, वो सफर जिसको तय करने के लिए मजनू ने सारी जिंदगी दश्त की खाक छानी थी। फरहाद ने नहर खोदी थी और यूसुफ ने जेल खाने की सोबत गवारा की। वो सारा सफर जुलेखा ने पलक झपकाते में तय कर लिया था। इरफान के इस लम्हा में जब उसने अपना सर काट कर हथेली पर रखा था, इसका सारा वजूद रोशनी बन गया था। मगर ये सब बातें वो किसी को नहीं समझा सकती थी। वो खामोश रही। जुलेखा ने अपनी सहेलियों को जब अपने बुढ़ापे पर तरस खाते देखा तो कहा, यह भी कितनी अच्छी बात है कि मैं तुम्हें इस बूढ़े जिस्म की बदौलत नजर आ रही हूँ। मैं तो खुद को नजर भी नहीं आती, बस वही है। इसकी एक सहेली हंस कर बोली, कौन? यूसुफ। जुलेखा ने कहा, तुम ये बातें नहीं समझ सकती हो, इसलिए इसे यूसुफ कह लो तो कोई हर्ज नहीं है। फिर जुलेखा उन्हें अपने साथ लाई और कहा, देखो ये अलमारियां, इनमें वो सब लिबास टंगे हुए हैं जो अज़ल से अबद तक के हैं। मैं जो लिबास चाहूं पहन सकती हूं, अनोखे देशों के खूबसूरत लिबास। तुम जिसे मेरा जिस्म समझकर मेरे बुढ़ापे पर तरस खा रही हो, वो तो मेरा लिबास है। फिर इसने उन्हें वो सब लिबास पहन कर दिखाए। कभी वो सीता बन गई, कभी द्रौपदी, कभी लैला, कभी शीरी। फिर वो हंस कर बोली, जिंदगी के इस रवा दवा समंदर में से आखिर में तुम्हें कहां तक निकाल निकाल कर दिखाऊं। ये हीर है, ये सोहनी है, ये कलोपित्रा है, ये अनारकली है, और ये नूर जहां है, और ये सबसे खूबसूरत लिबास ये जोगिया रंग की साड़ी और मनकों की माला।
یہ وہ जोगन है जिसका नाम मेरा था और जिसके बोल क़यामत तक जिंदा रहेंगे। फिर इसने सब अलमारियां बंद कर दें। मिस्र की सब औरतें हैरान परेशान थीं जैसे किसी शहर में हों। वो कभी आंखें मलती थीं और कभी खोलती थीं। आखिरी अलमारी बाकी रह गई थी। जुलेखा ने कहा, मैं इसे नहीं खोल सकती, इसमें आलम मिसाल के लिबास है। वो सब लिबास जिन्हें मोहब्बत ने जन्म दिया है, ये वो सब ख्याल हैं जो कल हकीकत बनेंगे। औरतों ने कहा, ये लिबास कैसे हैं? जुलेखा ने कहा, आलम मिसाल में ना जिस्म है ना ख्याल, बस वो लिबास तो सिर्फ एक हुक्म है। एक औरत ने पूछा, हुक्म क्या है? जुलेखा बोली, वो रूह है। जुलेखा ने कहा, तुम सब मौत से डरती हो, बुढ़ापे से खौफ खाती हो और सदा जवान रहने की आरजू करती हो। अब ये लिबास देखकर तुम्हारा खौफ दूर हुआ या नहीं? औरतों ने कहा, हाँ, अब हमारे दिलों से मौत का खौफ जाता रहा है। जुलेखा बोली, मौत का दुख और खौफ तो बांझ जमीन का दुख और खौफ है। वो जमीन जिस पर फल और फूल आते हैं, इसे मौत कहाँ? फिर वो मुस्कुराने लगी। एक औरत बोली, हमें मौत के बारे में बताओ। मौत किया है? जुलेखा ने कहा, जिस्म से जिस्म का मिलाप मौत है, फना है, और तुम जिसे फिराक कहती हो वो जिंदगी है, रूह का रूह से मिलाप होता है। एक औरत ने कहा, क्या रूह का मिलाप जिंदगी में मुमकिन है? जुलेखा बोली, हाँ मुमकिन है, मगर इस वक्त जब तुम जीते जी जिस्म से बाहर निकल सको, और ये वो राज है जो सिर्फ खिज़र को मालूम है और वो किसी को नहीं बताता। आओ मैं तुम्हें आप बका का राज बताऊं ताकि तुम हयात जावेद पालो। एक औरत ने कहा, हयात जावेद किया है? जुलेखा हंस पड़ी, वो एक लम्हा है, दीद का एक लम्हा, देख लेना और पहचान लेना। अगर हयात के लामुत्तनाही समंदर में वो एक लम्हा तुम्हें हासिल हो गया तो तुम जाम जहानुमा की मालिक हो। एक औरत ने पूछा, जाम जहानुमा क्या है? जुलेखा बोली, वो तुम्हारा दिल है, इस आईना को जितनी जल्दी सकोगी इतनी ही दूर देख सकोगी। माजी, हाल, मुस्तकबिल, एक लकीर के सब रोशन नुक्ते नजर आएंगे, फिर तुम वक्त की कैद में नहीं होगी, वक्त तुम्हारी कैद में होगा। एक औरत ने कहा, देखो तुम सब मिट्टी के कोज़ों की परवाह करना छोड़ दो, हस्ती के बाजार में उन कोज़ों की कमी नहीं, जो चीज प्याले में है वो कीमती है। वो शराब ही आब हयात है, वो रोशनी है, वो तुम्हारी रूह है और सच रूह की ग़िज़ा है। इन औरतों ने कहा, अब हम तुम्हारी बातें समझ गए, हम आज अपने रोशन अंगूठों का हाल अपने शोहरों को बता देंगे। यूसुफ सच्चा है और अजीज मिस्र के सामने तुम्हारी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। जुलेखा ने मोहब्बत से उन्हें गले लगाया और बोली, तुम्हारा राज मेरा राज है। अगर तुमने यूसुफ को चाहा और पसंद किया तो मैं खुश हूं, इसलिए कि यूसुफ मुझसे अलग नहीं, ना मैं यूसुफ से जुदा हूं। तुमने इसे चाहा तो मुझे चाहा, और मेरी बेगुनाही और सब पर तो साबित है। अजीज मिस्र के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, वो मुझे जानता है, तुम सब जानती हो, मिस्र के सब लोग जानते हैं, मगर मेरी बेगुनाही यूसुफ पर इंसाफ के रोज साबित होगी जब उसे मेरी नियत का हाल मालूम होगा। इस रात उन सब मुअज़्ज़ज़ और पाक दामन औरतों ने अपने अपने खावंदों को अपने अंगूठे जख्मी होने का हाल सुनाया और कहा, यूसुफ भी सच्चा है और जुलेखा भी सच्ची है और पाक दामन है। इन सब के अंगूठों की रोशनी यकायक गायब हो गई तो उन मर्दों ने कहा, काश तुमने अपनी जबानों पर ताला ही रखा होता तो अच्छा था। औरतों ने मर्दों से कहा कि वो रोशनी अपने मकाम पर वापस आ गई है और अब वो हमारे दिलों में है। जब उन्होंने जुलेखा की बातें अपने मर्दों को सुनाई तो वो बोले, मगर मिस्र के काहिनों ने जुलेखा की बातें सुन ले तो वो उसे भी जेल खाने में डालवा देंगे, ऐसे बदतर कोई सजा देंगे। औरत नाकिस अल अक्ल होती है, इसकी बात मानकर तुमने अंगूठों की मुकद्दस रोशनी खो दी। वो जो बढ़ बढ़ कर बातें बना रही है, इससे पूछो कि आज तक कोई औरत पैगंबर अवतार हुई है। औरतें ये सुनकर चुप हो गईं। जब वो औरतें जुलेखा के पास आईं तो उन्होंने अपने मर्दों की बातें सुनाई। जुलेखा उनकी बातें मुस्करा मुस्करा कर सुनती रही, फिर बोली, औरत ने पैगंबर और अवतार होने का दावा नहीं किया, इसलिए कि दावा करना औरत को ज़ेब नहीं देता। सूरज दुनिया से ये नहीं कहता कि मेरे पास रोशनी है, वो तो सबको रोशनी देता है। औरत पैगंबर और अवतार पैदा करती है। फिर उन औरतों ने कहा, वो सब कहते हैं औरत की अक्ल नाकिस। जुलेखा बोली, ये सच कहते हैं, औरत अक्ल में नाकिस है और इश्क में कामिल है। मर्द अक्ल में कामिल बनता है मगर वो इश्क में नाकिस है, और जो इश्क में कामिल हो उसे नजर आता है। हकीकत का इरफान दीद है न कि शनीद। मर्दों का इल्म जाहिर का है और औरतों का इल्म बातिन का है। जाहिर को बातिन का इल्म नहीं, इसलिए वो औरत को नाकिस अल अक्ल कहते हैं।
मगर बातिन को जाहिर का हाल मालूम है, इसलिए औरत कोई दावा नहीं करती, ना किसी बात का बुरा मानती है, वो हंस कर चुप हो जाती है। इन मर्दों ने जब ये सुना कि जुलेखा उनकी बातों पर हंस कर चुप हो जाती है तो वो खिसियाने हो गए और उल्टा अपनी तकदीर को कोसने लगे कि उन्होंने रोशन अंगूठों वाली औरतों से शादी करने की बजाय मामूली औरतों से शादी क्यों ना की, जो उनकी हर बात बिला चूं चरा मानती और आंखों पर पट्टी बांधकर उनके पीछे चला करती। अजीज मिस्र ने इस रात एक ख्वाब देखा और दूसरे दिन अपने मुसाहिबोहे के आगे बयान किया, और फिर वो गुलाम जो उसे शराब पिलाने पर मामूर था दो जानू है कर बोला कि इसे ख्वाबों की ताबीर बताने वाले का पता मालूम है, और उसने यूसुफ का हाल बयान किया। अजीज मिस्र ने यूसुफ की रिहाई का हुक्म दिया और साल बाद वो ख्वाबों का हाल जानने वाला और उनकी ताबीर बताने वाला जेल खाने से बाहर आया। वो जेल खाने जाकर वक्त की धूप छांव से महफूज था। वहां वक्त ठहर गया था, हसन, सेहत, जवानी सब चीजें वक्त के साथ ठहर गई थीं और यूसुफ वही यूसुफ था। मगर जुलेखा वो जुलेखा नहीं थी, और जिस तरह फल पककर दरख्त से लटक जाता है इस तरह वो जीती जी जिस्म की कैद में से निकल आई थी। फना की मंजिल से गुजर कर बका की इस मंजिल में थी जहां सब लिबास इसकी अलमारियों में बंद थे, मगर इसे अपना बूढ़ा झुर्रियों वाला लिबास पसंद था। अगर वो लिबास बदल लेती तो अजीज मिस्र और दूसरे लोग उसे ना पहचानते, और यूसुफ के जेल खाने से आने तक वो इस लिबास में रहना चाहती थी ताकि यूसुफ का इम्तिहान ले सके और देख सके कि यूसुफ उसे पहचानता है या नहीं। जब यूसुफ जुलेखा के सामने आया तो वो इसे नहीं पहचाना। वो बेगानों की तरह एक दूसरे के सामने से खामोश गुजर गए। फिर कहत साली का दौर आया तो अजीज मिस्र के ख्वाब की ताबीर लोगों ने हर्फ बा हर्फ पूरी होती देख ली। अजीज मिस्र ने यूसुफ को अपने तख्त का वारिस बनाया, क्योंकि वही उन्हें कहत बीमारी और अंधेरे से निजात दिलाने वाला था, और इसे यूसुफ पर भरोसा था और मिस्र के लोग इसे अपना निजात दहिंदा समझते थे। और जब यकूब की आंखें रोशन हुईं और उसने यूसुफ को इसके ख्वाब का मतलब समझाया तो सबके सर उसके सामने झुक गए। सबके ख्वाब सच बनकर जाहिर हुए, मगर जुलेखा ने अपने ख्वाब का किसी से जिक्र नहीं किया था। वो अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहती थी और ख्वाबों की ताबीर बताने वाला यूसुफ था, जो इसे पहचानता ना था। इसलिए अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने जाना जुलेखा को कुछ अच्छा ना लगा। फिर इसने सोचा कि इसके ख्वाब की ताबीर भी इसी तरह एक दिन सामने आएगी जिस तरह सबके ख्वाबों की ताबीर सामने आई है, और इस दिन इसे यूसुफ पहचान लेगा। कुछ अरसा बाद यूसुफ ने अपने महल में दावत की जिसमें सब मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद थे। इस दावत में वो औरतें भी थीं जिनके अंगूठों का एक जमाने में बड़ा चर्चा था। उनके खावंद भी साथ थे, और इस दावत में यूसुफ ने अजीज मिस्र की बेवा को भी बुलाया था। जब जुलेखा उन सब औरतों के दरमियान बैठी तो यूसुफ की इस पर नजर पड़ी और वो सोच में पड़ गया। जुलेखा ने फैसला कर लिया कि वो यूसुफ को आज याद दिलाएगी कि वो कौन है, और एक लम्हा के लिए जुलेखा ने वो लिबास पहन लिया जिसे उतार कर उसने मिस्र की मलिका का लिबास पहना था। वो लिबास कनान की इस दोशीजा का था जो यूसुफ के साथ लड़कपन में भेड़ें और बकरियां चराया करती थी। और जब एक दफा इसने यूसुफ के भाइयों को कुनवे में धक्के कर इसे गिराते देखा तो इसे निकालने दौड़ पड़ी थी। इसके भाई जा चुके थे, वो बेकरारी के आलम में कुनवे में कूद गई, और जब वहां इसने यूसुफ को जिंदा सलामत 14वीं के चांद की तरह चमकते देखा तो इसे इतनी खुशी हुई। इस खुशी की ताब ना लाकर इसने अपनी जान दे दी। अब फिर यह हुआ कि यूसुफ के पास जाकर इसने दूसरा जिस्म बेकार समझकर फेंक दिया हो। यूसुफ ने इस लम्हा जुलेखा को पहचान लिया। कैद खाने का पूरा अरसा गुजार कर यूसुफ वो राज समझा जो जुलेखा अजीज मिस्र और सब बुजुर्गों की मौजूदगी में समझाना चाहती थी। जब जुलेखा ने कहा था कि मैं यहाँ हूँ तो यूसुफ ने सोचा था कि जुलेखा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, मगर आज जब उसने जुलेखा को कनान की दोशीजा के पुराने लिबास में देखा जो कुनवे में रह गया था तो वो इस लम्हा इस जुमले का मतलब समझ गया कि मैं यहाँ हूँ। जब हकीकत बेनकाब हुई तो कुनवे से निकालकर मिस्र के बाजार में लाया जाना, सब औरतों के अंगूठे काटना और जुलेखा का दामन पकड़ना, सब बातें इसकी समझ में आ गईं। जुलेखा का वो लिबास बहुत खूबसूरत था और मिस्र की सब मुअज़्ज़ज़ औरतों के मलबूसात बहुत खूबसूरत थे, और इसलिए यूसुफ ने उनके शर से बचने की दुआ की थी। यूसुफ ने सोचा कि काश जुलेखा इस वक्त रम्ज़ और इशारे में बात न करती और वो बता देती कि वो कौन है, तो फिर मिस्र के तख्त पर बैठने के बाद वो साल गम न करता कि वो मिस्र का बादशाह होने के बजाय कनान का एक फ़कीर होता।
उसने सोचा कुनवे से अजीज मिस्र के महल तक उसे जो चीज लाई थी वो कनान की मिट्टी की खुशबू थी जिसमें उसकी रूह मुक़य्यद थी और वो सारे अरसा अपनी रूह को तलाश करता रहा। अब अगर मिस्र की औरतों ने अपने अंगूठे काट लिए तो इसमें इसका क्या कसूर था। जब जुलेखा ने देखा कि उसे यूसुफ ने पहचान लिया तो गम का बोझ इसकी रूह से हट गया और उसका दिल खुशी से भर गया। इसका रवा रवा खिल उठा। मिस्र के लोगों ने जब इस लम्हा जुलेखा को फूल की तरह हंसते देखा तो वो बोले कि यूसुफ को देखकर जुलेखा खुशी से जवां हो गई है। ये बात सुनकर यूसुफ भी मुस्कुराने लगा और जुलेखा भी मुस्कुराने लगी। इसलिए अपनी हकीकत वो खुद जानती थी या फिर यूसुफ जानता था। यूसुफ बेकरार हैकर मसनद से उतरा और चाहा कि हाथ पकड़ के उसे मसनद पर अपने बराबर जगह दे, मगर जुलेखा मोहब्बत और वक्त के रम्ज से आशना थी। वो यूसुफ को वो लिबास कैसे दे देती जो अजीज मिस्र की मलकियत थी। यूसुफ ने हाथ बढ़ाकर लम्हा को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा। सूरज और चांद ठहर गए। लम्हा इसकी गिरफ्त में आ गया। इसने जुलेखा का हाथ पकड़ लिया और फिर पकड़कर फौरन ही छोड़ दिया। यूसुफ अगर इसका हाथ अपने हाथ में लेकर इसी तरह खड़ा रहता तो वक्त का वो लम्हा हमेशा के लिए ठहर जाता और सूरज चांद तो सफर करने के लिए। यूसुफ को वो एक लम्हा मिस्र की बादशाहत से ज्यादा कीमती मालूम हुआ जब उसने वक्त को गिरफ्त में ले लिया था। और जब यूसुफ ने जुलेखा का हाथ पकड़ा तो जुलेखा अपने ख्वाब की ताबीर जान गई। जुलेखा ने देखा कि वो तो सिर्फ रोशनी था, जिस्म नहीं था, और यूसुफ ने जुलेखा का हाथ पकड़कर महसूस कर लिया था कि इसके हाथ में कोई हाथ नहीं है और उसी लिए इसने इसका हाथ पकड़ते ही छोड़ दिया था। लम्हा को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया था। चांद और सूरज को सफर करने दिया था। सब लोग हैरान और परेशान कभी यूसुफ को देख रहे थे और कभी जुलेखा को, और उनकी समझ में कुछ ना आता था। और फिर उन सब की हैरत दूर करने को यूसुफ ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो फटा पुराना करता ले आए जिसे आंखों पर रखते ही इसके बाप की आंखें रोशन हो गई थीं। यूसुफ का छोटा भाई वो करता ले आया तो सब ने देखा ये वही करता है जिसका दामन पीछे से फटा हुआ था। सबके सामने यूसुफ ने वो पुराना फटा हुआ करता पहना तो सबकी आंखें चिंधिया गईं। वहां यूसुफ के बजाय उन्हें नूर का एक हाला नजर आया। तब ये रम्ज उनकी समझ में आ गया। साल पहले यूसुफ ने अपने बाप को जो फटा पुराना करता भेजा था तो उसे रोशनी भेजी थी। जुलेखा ने अपना सर झुका लिया और यूसुफ से बोली तो सच्चा है, मैं ही नादान थी, काश मैंने ये करता ना फाड़ा होता। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा अगर तो वो करता ना फाड़ती तो रोशनी करते ही में रहती। तूने वो करता फाड़ा तो रोशनी हर तरफ फैल गई। जब तक मैं अपने जिस्म की कैद में था रोशनी भी कैद थी।